Hello students, so today in this part we have to discuss about the refraction by the spherical lenses. So in this part we have to discuss about the lenses. We have to discuss about the lenses. So what are the lenses? So lenses are the transparent material bound by the two surfaces. Means कोई भी transparent material जो दो surface से bound हुआ है. Which of them both are the spherical surfaces और one of them is spherical surfaces. तो उसको हम लेंस कहते हैं. So how lens formed, this we have discussed now, or type of lenses. So how lens forms, if we take two spherical surfaces, we say that this is a first spherical surface and this is another. So if two spherical surfaces intersect with each other, clear, and this is the center of the first spherical surface, we say the C1 and this is the C2. So now this middle portion, which is the intersection of two spherical surfaces. So here form a lens, this is your lens, this lens is known as convex. Clear? So in that way convex is full form. So what is convex lens? So अगर हम convex को define करते हैं तो convex lens क्या है? A lens which is thick from the middle and thin from the edges. कि वो lens जो बीच में से क्या है thick है और edges से क्या है thin है, उसको हम बोलते हैं convex. That lens is said to be convex. On other word, if two spherical surfaces, one is that spherical surface, another this spherical surface, have gap between them, so this the middle portion of this lens, middle portion of these two spherical surfaces formed a lens. So if this we have to draw, this is like this. अब जो ये आपका लेंस है, इस लेंस को हम बोल लेंगे that is concave. So if you want to define the concave, you can easily define what is concave. A lens whose middle part is thin, जिसका middle part क्या thin है and edges are thick. कि a lens whose middle part is thin and edges are thick is called concave, and a lens whose middle part is thick and edges are thin is called convex. So this is your definition of concave. So concave क्या होगा? वो लेंस जिसका जो बीच वाला पोर्शन है वो पतला है और जो एजेस हैं वो मोटे हैं, तो उसको हम बोल लेंगे कनकेव. अगेन देयर इज अगेन टू सेंटर, दिस इज फर्स्ट सेंटर C1 एंड दिस इज अनदर सेंटर C2. क्लियर? एंड दीज आर द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्फेरिकल सरफेसेस जिनसे आपके लेंस बनते हैं. सो नाउ नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टर्म रिलेटेड टू द लेंसेज. सो जो फर्स्ट टर्म आपकी है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस. So as we have discussed in the previous part, कि when two spherical surfaces intersect with each other, for example this is first surface and this is another second surface, so इसका भी कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर था C1, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था C2 था. क्लियर? ये एक लेंस बना था. तो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? इमेजिनरी लाइन विच जॉइन द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर. क्लियर? अगेन इफ वी ड्रॉ अनदर पोर्शन, दिस इज योर कनकेव. तो कनकेव के अंदर तो ये जो आपका मिडल पोर्शन था ये आपका कनकेव बना था. तो ये कनकेव बना था, तो ये आपका है सेंटर C2 और ये सेंटर आपका है C1. सो इमेजिनरी लाइन विच जॉइन द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि कोई इमेजिनरी लाइन जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जॉइन करती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं एंड कैन बी एक्सटेंडेड ऑन द ईदर साइड. इसको हम दोनों साइड हम एक्सटेंड कर सकते हैं. सो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? इमेजिनरी लाइन which join the two center of curvature is called principal axis. So now we move to the next part. The next is center of curvature. So अभी हमने थोड़ी देर पहले center of curvature की बात की थी, center की बात की थी. तो what is center of curvature? अब जो center of curvature है ये उस hollow spherical सरफेस का सेंटर है जिससे आपका लेंस बना है. तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? इट इज द सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर. इट इज द सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर. जैसे ये सेंटर था C1 और ये सेंटर था C2. तो इट इज अ सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट. सॉरी, स्फेरिकल लेंसेज फॉर्म्स अ पार्ट. मिरर के केस में मिरर बोलना है और लेंस के केस में आपने लेंस बोलना है. तो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ अ होलो स्फीयर फ्रॉम विच स्फेरिकल लेंसेज फॉर्म्स अ पार्ट. तो ये आपका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो नेक्स्ट टर्म के ऊपर बात हम करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो एज वी हैव डिस्कस्ड प्रीवियसली कि अगर ये आपका एक होलो स्फीयर है, ये आपका एक होलो स्फीयर है, इन होलो स्फीयर से आपका जो ये लेंस बना है मिडल पार्ट, ये जिसको हम कहते हैं, क्लियर? तो अगर ये मिडल पार्ट का जो लेंस बना है तो अब हमने इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बतानी है. तो ये इसका सेंटर था,
C1 और ये सेंटर था C2। तो व्हाट इज रेडियस कर्वेचर? इट इज द रेडियस ऑफ अ होलो स्फीयर। इट इज द रेडियस ऑफ अ होलो स्फीयर फ्रॉम विच अ स्फेरिकल लेंसेज फॉर्म्स अ पार्ट। मीन्स ये उस होलो स्फीयर की रेडियस है जिससे आपका लेंस बना है। नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस को डिस्कस करने से पहले हमें 2 पॉइंट को और डिस्कस करना है। उन पॉइंट को हम देखते हैं पहले क्या है वो। अब वो 2 पॉइंट कौन से हैं हमने वो देखने हैं। तो हमने यहाँ पे 2 लेंस बनाए थे, एक आपका कन्वेक्स था, दूसरा आपका कनकेव था। सो इफ दिस इज योर कन्वेक्स लेंस and it is a principal axis, and this is your concave lens, clear, and this is the principal axis of this concave lens. So if the parallel beam of light fall on the lens, ये कनकेव के ऊपर, कन्वेक्स के ऊपर फॉल की है और ये कनकेव के ऊपर फॉल की है, तो what we have observed that कि that your convex lens converge these all ray of light on a single point. So your convex is said to be convergent. On the other hand, what we have observed in case of concave, if this have seen in this case, when a parallel beam of light fall on the concave lens, so what we have seen that it diverges the light. इसने लाइट को क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया. So when we extend it in the backward direction, here is that light focus forms on the principal axis. So means your convex is a convergent and your concave is a divergent lens. So इसी के बेस पे हम आगे चलते हैं. एक पॉइंट हम समझते हैं, हमने बोला था यहाँ पे कि जो लेंस साइड इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय द 2 सरफेसेस विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल. मीन्स या तो दोनों स्फेरिकल होंगे. तो इस केस में आपका ये भी स्फेरिकल है और ये भी स्फेरिकल है. इस केस में आपका ये भी स्फेरिकल और ये भी स्फेरिकल है. अब एक प्लेन कैसे होगा वो देखते हैं. सो इफ दिस इज योर कन्वेक्स, ये आपका कन्वेक्स है. इफ इट इज कट इनटू द सेंटर पार्ट, इसको हमने ऐसे कट कर दिया तो ये आपका ये पोर्शन बन गया. अब जो ये सरफेस है ये प्लेन है. क्या नाम है इसका? ये प्लेन. सिमिलरली आपका ये जो कनकेव था, ये हमने कनकेव बनाया. इस कनकेव हमने 2 पार्ट में कर दिया तो ये आपका बन गया कनकेव लाइक दिस. सो अब ये जो बने हैं, दीज आर आल्सो लेंस, ये भी आपके लेंस हैं, बट इनके नाम अलग हो. इसको बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स क्योंकि ये प्लेन और कन्वेक्स है. इसको बोलेंगे प्लेनो कनकेव क्योंकि इसका ये है कनकेव पार्ट और ये है प्लेन पार्ट. तो इस तरह से हम लेंस प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कनकेव भी हो सकते हैं अगर उनका एक पार्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होगा वो आपका अगर प्लेन होगा. तो हम आ रहे थे प्रिंसिपल फोकस के ऊपर, तो हम चलते हैं प्रिंसिपल फोकस के ऊपर. अब क्या है आपका प्रिंसिपल फोकस? तो प्रिंसिपल फोकस समझने से पहले हमने अभी थोड़ी बार डिस्कस किया था कि जो आपका कन्वेक्स और कनकेव है लाइट को कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं. तो हमने वो देखना है वो कैसे कन्वर्ज करते हैं और कैसे डाइवर्ज करते हैं. तो हम समझते हैं फोकस. फोकस के लिए सबसे पहले हमने एक लेंस लिया. दिस इज योर लेंस, दिस लेंस इज योर कन्वेक्स एंड दिस योर प्रिंसिपल एक्सिस. ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है. तो हम फोकस की बात करेंगे तो इफ दिस इज अ रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे है कोई पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो इसे लेंस पे हिट किया. लेंस पे हिट करने के बाद दिस लाइट इज रिफ्रैक्टेड एंड इट पास थ्रू अ पॉइंट थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. सो व्हाट इज फोकस? फोकस इज अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस. फोकस का एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे वेयर ए रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन. मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है जिसको हम फोकस बोल लेंगे, जहां से एक रे ऑफ लाइट पास होगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या थी? पैरेलल थी. सिमिलरली इफ वी ड्रॉ अनदर डायग्राम, दिस इज योर डायग्राम फॉर कनकेव. तो अगर ये एक रे ऑफ लाइट है, ये एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो पैरेलल आ रही है, तो हमने यहाँ से देखा कि दिस लाइट डाइवर्ज, ये लाइट डाइवर्ज होगी लाइक दिस. तो दिस लाइट डाइवर्ज, सो अगेन वी विल एक्सटेंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सो इट पास थ्रू द फोकस एफ. सो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो लेंस है उसके 2 फोकस होंगे. दिस इज योर कॉल्ड फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड फोकस एंड दिस इज योर फर्स्ट फोकस. क्लियर? तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे फर्स्ट फोकस कौन सा है और सेकंड फोकस कौन सा है. ठीक है. तो हमने देखा कि मेन पॉइंट हमने प्रिंसिपल फोकस की बात करी थी. प्रिंसिपल फोकस आपका वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जहां से एक रे ऑफ लाइट पास करेगी आफ्टर द रिफ्रैक्शन विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सो व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? वी हैव डिस्कस. इट इज सिमिलर टू द मिरर आल्सो, वेयर इन केस ऑफ मिरर we said that after reflection, in case of lens we say that after the refraction.
सो नेक्स्ट हम इसके बाद चलते हैं, जो नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट टर्म को देखते हैं कि व्हाट इज योर नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म आपकी है वो है ऑप्टिक सेंटर। अब ऑप्टिक सेंटर एक हम कहते हैं जैसे सेंटर ऑफ अ लेंस, या किसी भी लेंस का सेंटर है। फॉर एग्जांपल हमने ये कन्वेक्स बनाया, क्लियर, तो ये कन्वेक्स का ये सेंटर हो गया। सिमिलरली हमने कनकेव बनाया, ये कनकेव का सेंटर हो गया। द सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिक सेंटर। बट इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ दिस, इट इज अ पॉइंट ऑन लेंस, इट इज अ पॉइंट ऑन लेंस वेयर द रे ऑफ लाइट पासिस अनडेविएटेडली लाइक दिस। अभी हमने क्या देखा, जब भी लाइट आपकी किसी लेंस से पास होगी तो उसके पाथ में चेंज आएगा, बिकॉज लाइट आ रही है रेयर से डेंसर में या डेंसर से रेयर में। बट द ऑप्टिक सेंटर विच इज रिप्रेजेंट बाय ओ, जिसको हम ओ से लिखते हैं, इट इज रिप्रेजेंट बाय ओ, इट इज अ सेंटर ऑफ अ लेंस एंड इट इज अ पॉइंट ऑन अ लेंस वेयर द रे ऑफ लाइट पासिस अनडेविएटेडली, कि जहां से लाइट पास होगी अनडेविएटेडली। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका अपर्चर आएगा। अपर्चर क्या है? द पार्ट ऑफ द लेंस। अगर हम बात करते हैं कि ये हमने कन्वेक्स लेंस बना दिया, क्लियर, सो दिस होल पार्ट इज कॉल्ड अपर्चर। सिमिलरली हमने एक कनकेव बनाया, सो दिस पार्ट इज सेड टू बी अपर्चर। तो व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर हम कह सकते हैं डायमीटर है किसी भी लेंस का, बट इफ यू वांट टू डिफाइन इट, तो अपर्चर इज अ पार्ट ऑफ अ लेंस विच इज एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट। अब सारी की सारी लाइट यहाँ पे फॉल करेगी, क्लियर, यहाँ तक। सिमिलरली सारी की सारी लाइट यहाँ पे फॉल करेगी, तो द पार्ट ऑफ अ लेंस विच इज एक्सपोज टू इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड अपर्चर। अब नेक्स्ट आपकी फोकल लेंथ। तो अभी हमने दो पॉइंट डिस्कस किए हैं। इफ दिस इज अ लेंस, ये कोई आपका लेंस है, क्लियर, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये इसका ऑप्टिक सेंटर था, और यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट आई थी जो आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये फोकस के ऊपर से पास की थी। तो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिक सेंटर टू द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। मीन्स ऑप्टिक सेंटर से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलेंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ कनकेव, इफ यू वांट टू ड्रॉ इट, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये कोई रे ऑफ लाइट आई है, यहाँ तक सीधी जाएगी, आफ्टर दैट ये डाइवर्ज कर गई, तो इसको हमने पीछे की तरफ खींचा, तो ये आपका आ गया एफ और ये आपका था ओ। तो डिस्टेंस आपका ऑप्टिक सेंटर से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे फोकल लेंथ। So these are the terms which we have discussed about the lenses. These terms are similar to the terms which we have discussed in case of mirror also. Small differences are there. You have to listen it carefully and write on your fair notebook. If you have any doubt, we will discuss it later again. Now next are the rule used to draw the ray diagram. जैसे लेंस के लिए हमने, मिरर के लिए हमने रे डायग्राम के लिए रूल्स किए थे। अब लेंस के लिए भी हम रूल करेंगे कि अगर हमने रे डायग्राम ड्रॉ करने हैं तो उसके कौन कौन से रूल होंगे। तो सम रूल यू नो ऑलरेडी, सम रूल वी हैव डिस्कस नाउ। सो पहला रूल आपका जो है, द फर्स्ट रूल इज कि इफ दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर कन्वेक्स, अगर ये आपका कन्वेक्स है तो पहला रूल ये कहता है कि फॉर रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सो दैट रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस पासिस थ्रू द फोकस। तो ये आपका पहला रूल है कि अगर कोई रे पैरेलल है तो वो फोकस से पास करेगी। It is also in case of convex and concave, both are same. So if this is your concave and this is a ray of light which is parallel to principal axis, ये ray of light है जो parallel है principal axis के, इसको डाइवर्ज करेगा तो यहाँ से पास होगी, इसको हम पीछे की तरफ खींचेंगे तो दिस लाइट पास थ्रू द फोकस। तो पॉइंट हमने यहाँ पे समझना है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास होगी। क्लियर। अब पॉइंट नंबर दो, पॉइंट नंबर दो आपका है इसका उल्टा। उल्टा मतलब इफ दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर कन्वेक्स। सो अगर कोई रे, अगर हम कह देते हैं अगर कोई रे आपकी फोकस से आ रही है, सो इफ दिस इज योर फोकस, क्लियर, अगर ये कोई रे है जो मिरर की तरफ आ रही है फोकस से, सो इफ दिस रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द फोकस एंड आफ्टर द रिफ्रैक्शन इट बिकेम पैरेलल, ये आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। मतलब उसका उल्टा, पहले पैरेलल थी तो फोकस से पास, अगर फोकस से आ रही है तो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। दिस इज आल्सो सेम केस इन केस ऑफ कनकेव आल्सो। अब कनकेव में कैसे होगी इसको देख। अब इस केस में हमने क्या देखना है कि ये कोई रे है, अब दिस रे इज अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। एक्चुअल में फोकस से लाइट तो पास हो ही नहीं सकती इसके केस में, कनकेव के केस में, तो हमें लग रहा है कि दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस। सो अगर हम इसको भी कर सकते हैं, अगर इसको हम रिवर्स कर दें तो ये यहाँ से होगा आपका और ये यहाँ से हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये रे लग रही है जैसे कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है। तो ये इसका केस हो गया। अब नेक्स्ट आपका केस है नंबर 3 केस। ये तीनों के तीन रूल आपके यूज होंगे टू ड्रॉ द रे डायग्राम।
तो तीसरा रूल आपका ये है कि अगर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका कोई भी कनकेव कन्वेक्स मिरर है, तो अगर कोई रे ऑप्टिक सेंटर से आ रही है तो दिस रे पासिस अनडेविएटेडली, ये रे आपकी अनडेविएटेडली पास होगी। सिमिलरली इफ दिस इज योर कनकेव, अगर ये कोई कनकेव है, यहाँ पे इसका है ऑप्टिक सेंटर, तो अगर कोई रे ऑप्टिक सेंटर से आएगी तो दिस रे पासिस अनडेविएटेडली। तो ये 3 रूल हैं। इन 3 रूल में से आपका ये फर्स्ट और ये थर्ड रूल हम यूज करेंगे टू ड्रॉ द रे डायग्राम। सो जो फर्स्ट हम इमेज फॉर्म बाय द लेंसेज के अंदर फर्स्ट हम देखेंगे इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स। क्या देखेंगे हम? इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्सिस। तो जो पहला आपका इमेज फॉर्मेशन है वो कन्वेक्स है। कन्वेक्स हैव 6 केसेस, इसके 6 केस होंगे भाई। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दी 6 केसेस। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में हमने क्या करना है, वी हैव टू जस्ट चेंज द object distance. With the change in the object distance we have to see that the how the image distance changes, कि ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग जगह पे रखेंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ कहाँ पे बन रही है। जो फर्स्ट केस आपका रहेगा वो रहेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फानाइट, कि जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे होगा। तो फॉर दिस वी हैव टू ड्रॉ अ रे डायग्राम। इसके लिए हमने रे डायग्राम ड्रॉ करना है। हमने ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज की साइज, इमेज की हाइट के बारे में बताना है कैसी होगी इसकी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन व्हेन वी हैव यू हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम, द फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस। सो इफ वी से दैट दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। सो अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका यहाँ पे आ गया कन्वेक्स लेंस। क्लियर? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फानाइट, फ्रॉम द इन्फानाइट ऑब्जेक्ट द लाइट कमिंग एज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट। सो इफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फानाइट तो वहाँ से बीम आएंगी पैरेलल लाइक दिस। क्लियर? ये पैरेलल बीम आ रही हैं कहाँ से? ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फानाइट पे है। सो दीज ऑल बीम्स आर कन्वर्ज एट अ पॉइंट, उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। सो सारी की सारी रे यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। दिस इज योर F2। सो जो इमेज फॉर्म बनी है, अब हमने बतानी है पोजीशन, नेचर एंड साइज। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे साइज लिखता हूँ, हर एक रे डायग्राम ने आपने ये तीनों चीज़ों के बारे में बताना है। सबसे पहले साइज, साइज के बारे में कहोगे, साइज जो है वो पॉइंट साइज है, मीन्स जो इमेज बनी है वो पॉइंट साइज है। फिर बतानी है पोजीशन। पोजीशन का मतलब कहाँ पे बनी है? जो इमेज बनी है फॉर्म्ड एट फोकस, वो कहाँ बनी है? फोकस पे बनी है। और तीसरा बताना है नेचर। नेचर का मतलब है आपने बतानी है कि इमेज रियल है, वर्चुअल है, क्या है इमेज। तो सिंपल सी बात है कि जो रे ऑफ लाइट है दैट आर एक्चुअली मीट आफ्टर द रिफ्रैक्शन, जब रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करेंगे रिफ्रैक्शन के बाद, तो जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। दैट इमेज इज रियल इमेज। तो इसके बारे में हमने क्या बोला? इमेज बनी है F2 के ऊपर बनी है, इमेज हाईली डिमिनिश्ड होगी, पॉइंट साइज की होगी, रियल है, रियल है तो आपकी होगी इन्वर्टेड। तो रियल के साथ आपको याद रखना है इन्वर्टेड आपकी टर्म आएगी। तो दिस इज योर फर्स्ट केस। सो नाउ वी विल मूव द ऑब्जेक्ट मूव further toward the lens and how the position of image changes, this we have discussed next cases। अब जो नेक्स्ट आपका केस है वो बियॉन्ड 2F1 है। अब ये हमने पहले 2F1 समझना है कि 2F1 क्या है। सो अगेन वी विल ड्रॉ, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमने यहाँ पे लेंस बना दिया, दिस इज योर लेंस। सो हमने कहा था ये लेंस का है ऑप्टिक सेंटर। सो वी से दैट कि दिस इज योर फोकस F1। क्लियर? सो F1 से लेके O तक का डिस्टेंस हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो अगर ये O से लेके F1 है, हम O से लेके F1 तक ही जितना मान लो अगर 2 सेंटीमीटर, तो अगर इससे हम 2 सेंटीमीटर और आगे जाते हैं, वी से दैट कि हम यहाँ पे चले गए, तो ये बन गया 2F2। क्लियर? एक्चुअल में जो 2F2 है ये कहीं ना कहीं पोजिशन है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, मीन्स दिस इज द पोजिशन ऑफ C। C मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि अगर ये F था, क्लियर, फोकल लेंथ थी, तो ये भी क्या होगा? F होगा, जितना ये इतना ये, तो ये F और F 2F हो गया आपका। कितना हो गया आपका? ये 2F। तो अगर ये 2F हमने एक रिलेशन की थी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तो जो F था आपका, दैट F इज इक्वल टू R/2, मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक की जो पोजीशन है ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मीन्स 2F2O अगर हम लिखते हैं तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो कहीं ना कहीं दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कौन सी पोजीशन है? ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? तो ये आपने याद रखना है। तो अब हमने जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड C रखा है एक हिसाब से, ये वही केस जो हमने मिरर के केस में किया था। अब सिर्फ ये है कि वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते थे, यहाँ पे 2F2 है। क्लियर?
अब सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, वी से दैट कि दिस इज योर ऑब्जेक्ट, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए बी है, इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ लेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक रे ऑफ लाइट जाएगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये आपकी रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये पैरेलल है तो वी नो दैट कि दिस रे पासिस थ्रू दी फोकस। ये किससे पास करेगी, फोकस से पास करेगी। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया कि ये आपका आ गया फोकस। अब ये जो होगा दिस इज योर सेकंड फोकस। अब फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस को हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे, है कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। तो इसको हमने आगे तक खींचा तो ये रे आपकी यहाँ से आई थी और यहाँ से पास की है। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव टू सीन अनदर रे ऑफ लाइट। हमने कहा था दो केस लेंगे, एक ऑप्टिक सेंटर का केस लेना है और एक पैरेलल वाला है। तो अब एक और रे यहाँ से चलेगी जो कहाँ से पास होगी, दिस रे पासिस थ्रू दी, दिस रे पास थ्रू दी ऑप्टिक सेंटर। और जहाँ पे ये दोनों रे आपकी मिलेंगी, जहाँ पे आपकी ये दोनों रे मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल ये रे यहाँ पे मीट कर गई, तो इफ़ दीज टू रे मीट हेयर, तो एट दैट पॉइंट आपकी जो इमेज बनेगी। क्लियर। अब याद रखना है अगर यहाँ पे बियॉन्ड है तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट आएगा, ये आएगा 2F2। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, अगर यहाँ पे बियॉन्ड है तो यहाँ पे इमेज बनेगी बिटवीन। जब यहाँ बिटवीन होगा तो वहाँ बियॉन्ड बनेगी। तो इसके बारे में हम 3 पॉइंट लिखने हैं, इमेज कैसी है, नेचर कैसा है, साइज कैसा है और पोजीशन कहाँ पे है। सबसे पहले हम साइज की बात करते हैं। तो जो साइज होगा वो होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद पोजीशन क्या है इसकी, तो पोजीशन आप बता सकते हो बिटवीन F2 एंड 2F2, बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर कैसा होगा, तो नेचर आपको दिख ही रहा है, इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब उल्टी है, उल्टी है तो इमेज क्या होगी, रियल, और रियल मतलब इन्वर्टेड इमेज आएगी। तो ये आपका दूसरा केस था। अब हम जो नेक्स्ट केस जाएंगे दैट इज थर्ड केस। थर्ड केस में हम थोड़ा आगे जाएंगे, अब जैसे पहले बियॉन्ड थे अब जाएंगे 2F2 पे। तो ऑब्जेक्ट जब आपका होगा एट 2F1, एट 2F1 मतलब ऑब्जेक्ट सी पे आ गया। तो जो ऑब्जेक्ट सी पे है तो उसकी इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पे ही बनेगी। तो इसका हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट वी विल सी हियर, दिस इज योर लेंस, ये आपका लेंस है। क्लियर। सो हमने यहाँ पे नाम दे दिया दिस इज F1 एंड दिस इज योर 2F1। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो एक रे ऑफ लाइट जाएगी जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ तक गई, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस, तो ये आपका गया F2। क्लियर। अब दूसरी रे हमने यहाँ से लेके जानी है, कहाँ से, ऑप्टिक सेंटर से। ये आपका ऑप्टिक सेंटर आ गया। तो जहाँ पे ये दोनों रे मीट करेंगी वी से दैट कि यहाँ पे दोनों मीट करेगी। जब यहाँ पे दोनों मीट करेंगी तो यहाँ पे आपका जो होगा दिस पॉइंट इज योर 2F2। तो जब ऑब्जेक्ट 2F1 पे होगा तो इमेज बनेगी 2F2 के ऊपर। ये कौन सा केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पे बनेगी। तो इसके बारे में 3 बातें फिर हमने बतानी है। अब 3 बातें क्या हैं, साइज। साइज किसके अंदर क्या होगा कि अगर ये ए बी था और ये आपका था A डैश B डैश, तो यहाँ पे अगर हम साइज की बात करें तो ए बी आपका होगा A डैश B डैश के। इसका मतलब इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। उसके बाद अगर नेचर की बात करेंगे तो नेचर यहाँ पे फिर से बोलोगे रियल इमेज है, क्योंकि रियल क्यों है, इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड होगी तो रियल होगी। उसके बाद पोजीशन बतानी है कहाँ बनी है, तो इमेज आपकी बनी है 2F2 के ऊपर। तो ये केस आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट केस है, इसको समझना है। अब हम थोड़ा और आगे जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट केस आपका होगा बिटवीन F1 एंड 2F1। तो नेक्स्ट केस को हम देखते हैं, केस नंबर 3, बिटवीन F1 एंड 2F1। तो फिर से हमने यहाँ पे क्या करना है, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका लेंस आ गया। क्लियर। तो ये आपका आ गया F1 और ये आपका आ गया 2F1। तो ऑब्जेक्ट आ गया इनके बीच में कहीं पे भी। तो जब ऑब्जेक्ट इसके बीच में होगा यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाएगी, यहाँ पे आपने एरो जरूर डालना है। तो जब यहाँ से रे ऑफ लाइट जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पासिस थ्रू द फोकस, तो यहाँ पे आपका आ गया F2। क्लियर। अब दूसरी रे कहाँ जाएगी, दूसरी जाएगी ऑप्टिक सेंटर से। तो ये रे आपकी जाएगी ऑप्टिक सेंटर से। तो ऑप्टिक सेंटर से अगर ये जा रही है तो ये मीट करेगी यहाँ पे और यहाँ पे आपकी बन गई इमेज। तो ये आपका था, तो ये हमने यहाँ पे कहीं पे पॉइंट दे दिया, दिस इज 2F2। अब इस इमेज के बारे में आप क्या कहोगे, तो सिंपल सी बात है, पहले इमेज रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट था और ये है इमेज। तो यहाँ पे जो इमेज होगी
वो ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, मीन्स इमेज साइज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज क्या होगा, लार्जर होगा, या इमेज क्या होगी, इनलार्ज होगी। क्लियर। नेचर आपका रियल और इन्वर्टेड है। पोजीशन कहाँ पे है, बियॉन्ड, इसको हम लिख देंगे बियॉन्ड 2f2, बियॉन्ड 2f2 बनी है, रियल बनी है, रियल है तो इन्वर्टेड लिखोगे, और साइज क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ये आपने इसके बारे में 3 बात लिखनी है। तो ये आपका था थर्ड केस। अब फोर्थ केस में हम जाएंगे। क्लियर। तो हमने अब तक 3 केस हमने देख लिए हैं। तो फोकस, और फोकस के बाद तो ये आपका था, दिस इज़ योर फोर्थ केस, नोट थर्ड केस। ये पीछे वाला केस थर्ड था, तो ये आपका फोर्थ केस था। तो फोर्थ के बाद हम चलते हैं फिफ्थ केस के ऊपर। तो फिफ्थ केस में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा एट फोकस होगा, एट f1 होगा। तो फिर से हमने क्या ड्रॉ किया, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की। तो आफ्टर ड्रॉइंग प्रिंसिपल एक्सिस वी हैव टू ड्रॉ द रे डायग्राम। तो ये हमने कह दिया कि दिस इज योर f1 एंड दिस इज योर f2। क्लियर। यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट है, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से एक रे जाएगी, ये रे जाएगी, कहाँ से पास होगी, हमें पता है ये पास होगी कहाँ से, f2 से पास होगी। दूसरी रे जाएगी, वो कहाँ से पास होगी, ऑप्टिक सेंटर से पास होगी। तो ये रे कहीं ना कहीं आपकी कहाँ पे मीट करेंगी, दीज रे मीट एट इन्फानाइट। तो ये वही केस होगा कि जब रे इन्फानाइट से आएंगी इमेज फोकस पे बनेगी, जब हम फोकस पे होंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फानाइट पे बनेगी। तो इस इमेज के बारे में 3 बातें फिर से, इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, हाईली लार्ज, कि जो इमेज है इन्फानाइट पे अगर जाके रे मीट कर रही है तो जो इमेज का साइज होगा वो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, हाईली इनलार्ज इमेज बनेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ये आपका था जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एट फोकस। सो नेक्स्ट वी विल सी कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फर्दर टूवर्ड द लेंस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, कि इमेज की पोजीशन क्या होगी। सो योर सिक्स्थ केस, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट केस। सो पोजीशन होगी बिटवीन F1 एंड O, कि आपका ऑब्जेक्ट आ गया फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में। तो इस केस के लिए फिर से हमने एक, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका लेंस आ गया कोई भी, दिस ईयर कन्वेक्स लेंस। सो ये ऑप्टिक सेंटर था, दिस ईयर ऑप्टिक सेंटर, हमने कह दिया कि ये आपका है फोकस। तो यहाँ पे कहीं पे आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट जाएगी जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ से पास होगी, इट पास थ्रू द फोकस, दिस इज योर f2। दूसरी रे ऑफ लाइट जाएगी, वो जाएगी आपकी ऑप्टिक सेंटर से, ये जा रही है आपकी ऑप्टिक सेंटर से। तो जैसे हम इस रे को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि व्हेन दीज रेज आर एक्सटेंडेड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो दीज रे in the gap between these ray increases, so means in that direction these ray never meet with each other, but we have to form the image. For the formation of image we will extend these ray in backward direction. So इस रे को हमने पीछे की तरफ खींचना है। क्लियर। और इस रे को भी हमने पीछे की तरफ खींचना है। तो अगर इनको पीछे की तरफ खींचते हैं तो यहाँ पे दोनों आके इमेज बनती है। सो दीज लाइन आर डॉटेड लाइन, एक्चुअल में these ray never meet with each other, so we extend these ray in backward directions and also the image is upright, इमेज भी आपकी क्या बन रही है, अपराइट बन रही है। तो इसके बारे में आप क्या बात कहोगे। सो इमेज जो आपकी होगी वर्चुअल होगी, क्योंकि अपराइट है, वर्चुअल होगी, अपराइट होगी, इनलार्ज होगी, बड़ी भी होगी, और अब बताना है इसका पोजीशन कहाँ पे है, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का बन रही है ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट था उसी साइड आपकी क्या है, इमेज है। तो ये 6 केस थे आपके कन्वेक्स के। ठीक है। अब हमने 2 केस और डिस्कस करने हैं जो आपके होंगे कनकेव के। तो जो कनकेव है, कनकेव के आपके 2 केस हैं। द फर्स्ट केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट। सो पहला केस होगा आपका व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट, इन्फिनिटी, या जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फानाइट पे है। ये हमने पहले भी ड्रॉ किया था, वही वाला केस है आपका। तो ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ये आपका कनकेव है, ये कनकेव है। तो जब इन्फानाइट से रे आएंगी तो वी नो दैट दीज रे आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे आपकी पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो आपको पता है ये लाइट को डाइवर्ज करेगा, ये लाइट यहाँ से यहाँ चलेगी, ये यहाँ चलेगी। तो ये यहाँ पे आई है और ये यहाँ पे आई है।
अब वी नो दैट इमेज हैव टू फॉर्म, इमेज को फॉर्म करवाना है, तो दीज रे आर एक्सटेंडेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सो हेयर द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल फॉर्म। तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। क्लियर। सो ये जो इमेज है आपकी वर्चुअल इमेज है, पॉइंट साइज की है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। अब जो दूसरा केस होगा वो होगा बेटा बिटवीन इनफाइनाइट टू ऑप्टिक सेंटर, इनफाइनाइट और ओ के बीच में। अब इस केस को हमने कैसे समझना है कि जब हम किसी भी कनके मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन बिटवीन दी ऑप्टिक सेंटर एंड इनफाइनाइट, तो उसकी इमेज एक ही रीजन में बनेगी। उसको हमने समझना है एक डायग्राम में, मैं दो बना के बताऊंगा आपको। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट गई, तो आपको पता है ये लाइट को डाइवर्ज करेगा, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, बट इस रे को हम खींचेंगे पीछे की तरफ, वी से दैट कि ये आपने इसको खींच दिया। अब दूसरी रे जाएगी ऑप्टिक सेंटर से, ये रे आपकी जा रही है कहाँ से, ऑप्टिक सेंटर से, तो ये ऐसे चलेगी। तो जो आपकी इमेज यहाँ बन गई, तो ये आपका है फोकस F1। क्लियर। अब नेक्स्ट अगर मैं ऑब्जेक्ट को कहीं और रखता हूँ, मैंने क्या कहा कि अब ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ रख दिया, तो जो ये रे है ये तो आपकी सेम होगी। अब दूसरी रे कहाँ जाएगी, दूसरी रे जाएगी आपकी ऑप्टिक सेंटर से। तो अगले केस में जहाँ पे आपकी दोनों रे मीट की हैं वो यहाँ पे मीट की है। तो अब हमने यहाँ पे ये समझना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड टू इनफाइनाइट, कि इनफाइनाइट से लेके ऑप्टिक सेंटर के बीच में जहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, जो इमेज है दैट इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन द ऑप्टिक सेंटर एंड द फोकस। और जो इमेज होगी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, इमेज का होगी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और अपर राइट है, और क्या होगी आपकी वर्चुअल होगी। सो इसलिए इसके दो केस ही आपके पास है। नेक्स्ट अपना आता है साइन कन्वेंशन एंड लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। अब इसको हम डिस्कस करते हैं क्या है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब है कि डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे। दीज आर सिमिलर टू द मिरर बट स्मॉल स्मॉल चेंजेस आर देयर। तो इसको हमने समझना कैसे है, कोई भी एक रे डायग्राम बना लो आप, कोई भी रे डायग्राम, फॉर एग्जांपल ये आपका कन्वेक्स है, ये आपका ऑप्टिक सेंटर है जिसको हम ओ से लिखते हैं। अब पहला पॉइंट यहाँ पे है कि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिक सेंटर, कि सारे के सारे डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से मेजर किए जाएंगे। द डिस्टेंस ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, कि जितने डिस्टेंस इधर के होंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दीज आर नेगेटिव, और जितने भी राइट हैंड साइड पे होंगे वो सारे के होंगे पॉजिटिव होंगे। जितने भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ होंगे वो आपके पॉजिटिव होंगे, और जितने भी आपके नीचे की तरफ होंगे वो सारे नेगेटिव होंगे। तो दीज आर द साइन कन्वेंशन विच आर यूज इन केसेज ऑफ लेंसेज। सिर्फ वहाँ पे पोल था, अब यहाँ पे ऑप्टिक सेंटर आ गया, बाकी चीजें वही की वही रहेंगी। नेक्स्ट आपका आता है लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला क्या है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड द फोकल लेंथ। अब सिंपल सी बात है कि हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, क्लियर, तो इसका डिस्टेंस जो लेंस से होगा इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहीं पे इमेज बन गई, तो अगर ये इमेज है तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम वी से लिखते हैं, दैट इज इमेज डिस्टेंस विच रिप्रेजेंट बाय बी, वी नॉट बी वी। वी से दैट कि दिस इज द फोकस, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ विच रिप्रेजेंट बाय एफ। तो व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द यू वी एंड एफ। So what is that relation? This relation state that कि 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. So this is known as your lens formula. इसको हम क्या कहेंगे, lens formula कहते हैं। अब what is lens formula? Lens formula is the relation between the object distance, image distance and the focal length. अब मिरर में यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे लेंस में क्या आ गया, माइनस आ गया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आपकी जो है वो मैग्निफिकेशन है। क्या है नेक्स्ट टर्म आपकी, मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या है आपकी, सो जो मैग्निफिकेशन होती है दैट इज योर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉल एम। इट इज आल्सो सिमिलर टू दी मिरर आल्सो। जिसने मिरर का अच्छे से देखा है उसके लिए कोई नई टर्म नहीं है। सो जो मैग्निफिकेशन आपको बताते हैं कि हाउ मच द इमेज साइज चेंजेस विद रिस्पेक्ट द ऑब्जेक्ट साइज, कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 10 सेंटीमीटर थी तो उसके रिस्पेक्ट में इमेज की हाइट क्या आई है, उससे बड़ी आई है छोटी आई है, तो होती है मैग्निफिकेशन। एक्चुअली द मैग्निफिकेशन इज द रेशो, ये आपकी रेशो है किसकी, इमेज हाइट टू द ऑब्जेक्ट हाइट।
So if we say that कि image height object height is represented by h and image height is represented by h dash. So जो m आपका आएगा that is h dash divided by h. So this is in the form of height. ये आपका height की फॉर्म में है. इसको हम इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये आपका बनेगा v by u. अब इसको हमने समझना कैसे है. यहाँ पे क्या साइन है, माइनस का है, तो यहाँ पे इसके आगे प्लस आएगा. लिखोगे नहीं लिखोगे की बात है. अब मिरर में यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो इसलिए था माइनस का आपका. ये आपका डेरिवेशन है जो आपका +2 क्लास में आएगा, लेकिन अब आपने सिर्फ यहीं तक समझना है. अब यहाँ पे पॉइंट आपने क्या समझना, नेक्स्ट पॉइंट आपका यह है कि अगर m प्लस का होगा तब इमेज कैसी है, और अगर m माइनस का होगा तो सबसे पहले इफ़ m इज़ नेगेटिव, अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपकी इमेज होगी रियल. अगर रियल है तो रियल के साथ इन्वर्टेड वर्ड आएगा ही आएगा, क्योंकि रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. सो इफ़ योर m इज़ पॉजिटिव द इमेज इज़ वर्चुअल. ये आपका जो है वर्चुअल है तो अपराइट होगी. ये आपका न्यूमेरिकल में यूज होगा. तो ये आपका था अबाउट दी मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन. तो मिरर फॉर्मूला ये रिलेशन है और मैग्निफिकेशन आपकी है m, जिसके अब यहाँ पे बात आती है कि m की क्या कोई यूनिट होगी. तो m जस्ट अ नंबर, जो m होगा आपका मैग्निफिकेशन जो m है दैट इज जस्ट अ नंबर. ये एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, मतलब इट इज़ अ डिमेंशनलेस. इसकी कोई डिमेंशन नहीं है, इसका कोई यूनिट नहीं है. तो ये सिर्फ नंबर है. नंबर मतलब हमें ये बताता है कि कितने टाइम इमेज साइज आई है किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में. तो ये है आपका मैग्निफिकेशन. तो ये आपका टॉपिक था मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन. चैप्टर की थ्योरी का जो लास्ट टॉपिक है वो आपका है पावर. व्हाट इज पावर? द पावर इज द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट. मीन्स ये किसी भी लेंस की एबिलिटी है वो कितना लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करता है, उसको हम पावर कहते हैं. द पावर रिप्रेजेंट बाय पी, पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं. एक्चुअली द पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ. की जो पावर है वो रेसिप्रोकल है किसका, फोकल लेंथ का. एंड द यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर. यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर विच इज रिप्रेजेंट बाय डी. अब पावर क्या है, जो पावर है आपकी वो है 1/f. क्लियर. तो 1/f है, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इफ इट इज इन मीटर. सो इफ़ वी वांट टू फाइंड द पावर, अगर आपकी वो सेंटीमीटर में होगी तो फॉर्मूला बनेगा आपका 100/f इफ इट इज़ इन सेंटीमीटर. क्लियर. तो पावर इज अ रेसिप्रोकल ऑफ. अब इस पे यहाँ से पॉइंट समझना आपने कि किसी की अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो उसकी पावर कम होगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर इसकी फोकल लेंथ कम है तो उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी. क्लियर. तो अब हमने कहना है कि पावर की यूनिट क्या है, डायप्टर है. अब द यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर. अब हम उसको डिफाइन करना है. डिफाइन 1 डायप्टर, वी हैव टू डिफाइन 1d. 1d मीन्स द यूनिट ऑफ पावर. पावर की यूनिट क्या है, डायप्टर है. डायप्टर को हमने डिफाइन करना है. तो व्हाट इज डायप्टर? इफ द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस is 1 meter, then its power is said to be diopter. 1 diopter. तो इसको हम बोलेंगे 1 diopter. तो अगर किसी भी लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर को 1 डायप्टर कहेंगे. अब हमने इससे पहले एक वीडियो की थी, हमने कन्वेक्स कनकेव की बात की थी कि हमने यहाँ पे लिखा था कि इफ इज योर कन्वेक्स और ये आपका कनकेव है मिरर के लिए, तो हमने लिखा था u v f. सिमिलरली यहाँ पे u v और f. तो हमने कहा था u दोनों के लिए माइनस का होगा. क्लियर. f इसके लिए प्लस का होगा और इसके लिए माइनस का होगा. क्लियर. v भी इसके लिए प्लस का होगा और इसके लिए क्या होगा, माइनस का होगा. मीन्स कन्वेक्स के लिए सारी वैल्यू प्लस की रहेंगी, कनकेव के लिए सारी वैल्यू माइनस की. लेकिन एक केस आपका जिसको हम कहते हैं केस सिक्स्थ केस में आपका वो v आपका जो होगा वो आपका माइनस का आएगा. याद रखना आप लोगों ने इस बात को. जैसे मिरर का 6th केस था, क्लियर, कनकेव का, उसमें v प्लस का आता था, ऐसे ही कन्वेक्स का 6th केस होगा. अब इस पॉइंट हमने यहाँ पे समझना है कि कन्वेक्स की अगर फोकल लेंथ माइनस प्लस की है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ किसके प्लस की है, तो जो पावर भी होगी वो प्लस की आएगी किसके लिए, कन्वेक्स के लिए. एंड सिमिलरली द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव इज ऑफ नेगेटिव, सो इट्स पावर इज आल्सो कम्स आउट टू बी नेगेटिव. अब एक पॉइंट आपने समझना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, if your focal length is in centimeter and we have to find the power, so that formula you have to use. Means every time when you have to find the power, your focal length must be in meter.
फोकल लेंथ आपकी मीटर में होनी चाहिए। सो ये आपकी वीडियो थी थ्योरी की। इसके बाद जो एक वीडियो और मिलेगी आपको, उस वीडियो में हम जितने भी आपके न्यूमेरिकल होंगे, एनसीईआरटी इंटेक्स एंड टेक्स्ट क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू द कन्वेक्स मिरर, convex lens or lenses or mirror, this we have to discuss in the next video. So this is over for today. Complete this on your fair notebook. This is your theory. After completing this video on your fair notebook, comment your name in the comment box. If you have any doubt, you will message me. In the next video we will solve that doubt. So next we will meet with the next video of the NCERT in-text and n-text. So this is over for today. वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखने के बाद अपना नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। दिस इज ओवर फॉर टुडे। थैंक यू।